जी सर. Yes. Okay, very nice. Then what is trigonometry? Trigonometry to find the distances and heights we can use. हाँ हेलो, हाँ नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है. हाँ रुको, इंक फिल कर. Is the mathematical techniques. Mathematical techniques which come under the trigonometry. I will send notes also. No need of worry. So to find the distances and heights, we can use the mathematical techniques which come under the trigonometry. तो इस टॉपिक के अंदर आता है जिसमें हाँ trigonometry. It shows the relationship show the relationship between the sides and angles of a triangle of the triangle ठीक है. तो in trigonometry this mathematical techniques, it shows the relationship between the sides and angles of the triangle. What is the relationship between them? So we will read in trigonometry this. So generally in trigonometry we will talk about right angle triangle. Generally in trigonometry we will talk about right angle triangle. Tell me, what is the right angle triangle? A triangle with one angle is 90 degrees. Oh, in right angle triangle it is possible that more than one angle is 90 degree? No, it isn't. No. Very nice. So in trigonometry we will find the relationship between the sides and angles of the triangle, generally in right angle triangle. Okay. Now the term comes. Now it is introduction only. After that we will derive. After this, next term is metric ratios. Trigonometry ratio. Trigonometry ratios. Sorry. In right angle triangle,
triangle. The relationship between sides and trigonometry ratio in right angle triangle, the relationship between the sides and the acute angle. What is acute angle? Angle less than 90 degree. Only What? the angle less than 90 degree, Yes. but also greater than 0 degree also. But no angle is smaller than 0 degree. But clockwise and anti-clockwise, you know or not? In 11th class, there is clockwise also minus 90 degree. How? ये 90 degree. ये clockwise गया. इधर anti-clockwise ये भी 90 degree also, but in opposite direction. That's why it minus 90. Okay, no need of. Is right only. In 11th class, we will read. Acute angle is the trigonometry ratio. Is the trigonometry ratio. तो trigonometry ratio क्या? Relationship between sides of the triangle and the acute angle is the trigonometry ratio. ठीक है? तो this time. Next come next is very important. We will talk generally right angle triangle. So there, this is right angle triangle. One angle is 90 degree. A, B, C. Sir, video freeze हो रहा है. Video is freezing. नहीं दिख रहा है ठीक से. नहीं दिख रहा. Oh. I see. हाँ अब ठीक है. Now it is okay. Sir. Now it is okay. Okay. Yes sir. It's okay. 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 If any difficulty, you can tell without hesitation. This 90 degree. This is called hypotenuse. In front of 90 degree, the side name is hypotenuse. ठीक है? तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? Hypotenuse. हाइपोटेनस. तो इसे क्या बोलेंगे? बेस. Base. और इसको परपेंडिकुलर. Perpendicular. No, this is wrong. We can't tell. Now, if we consider this angle is theta. Then we can tell if with respect to this theta, this becomes perpendicular and this becomes base. Okay? Base. Okay. If we take this angle alpha, तो हम इस एंगल अल्फा को लिए, तो इसके लिए जो एंगल लिए उसके सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. तो सी एंगल लिए अल्फा, इसको लिए, इसके सामने वाले इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. परपेंडिकुलर. चलो, और ये बेस हो जाएगा. If we consider this angle, if we talk about this angle, then this became perpendicular this time. And this became remaining is base. Okay. Can I proceed? Yes sir. Okay. तो यहाँ तक हो गया. So now we consider this angle is theta, and this became base, and this became perpendicular.
Apart from this, you already know the Pythagoras theorem. You know what is the Pythagoras theorem? Square of hypotenuse is equal to summation of square of perpendicular and square of base. Very nice. Then this condition in H, this P and this B. Then what is the relation? H square equal to P square plus B square. This is Pythagoras theorem. Till now, any difficulty? No, sir. Okay. Tell. Okay. Now we will talk about trigonometry ratio. Then first comes sine. Sine theta. ठीक है ना? Sine of this angle ACB. ACB is theta. चलो, right. Sine of ACB. So what is the sine? Ratio of perpendicular and hypotenuse. This is perpendicular by hypotenuse. So sine is angle ACB equal to theta. So perpendicular what is? AB. And hypotenuse is AC. Can you tell sine of BAC? What is the value of sine of BAC? BC by AC. Very nice. BC by AC. So with respect to this angle, this become perpendicular and this become base. And according to right angle triangle, in front of 90 degree, this is hypotenuse. Okay. So this is sine. So according to this angle, sine is now AB by AC. Okay. Similarly, what is cos? Cos is the ratio of Base and base hypotenuse. and hypotenuse. According to angle ACB, what is the base? BC. Right? And what is the hypotenuse? AC. Okay. Now, tan. What is tan? Perpendicular by hypotenuse. Perpendicular By base. by hypotenuse. By base. Oh, no. I am talking cos. No, base. Sorry. Thank you. Base. What is the base according to the ACB? BC. BC by AC. So this becomes AB को क्या नाम दिया? P. P by H ऐसे याद करिए. और this B by H. और what is tan? Perpendicular by base. Perpendicular by base. So here perpendicular is AB or base is BC. AB by BC. This becomes P by B. Till now, okay. Can I erase? Hello? हाँ सर. Okay. Now, first sin theta, cos theta, and tan. This is P by H according to this figure. B by H. This is P by B.
This reciprocal of sin theta is cosec theta. Cosec theta. Cosec theta. So this reciprocal become h by. This is cosec cos theta reciprocal. Sec theta. This reciprocal cot theta. So sec theta is h by b, and this is b by b. Cos theta. Okay. Can I erase? Yes. Yes, sir. Okay, very nice. Answer. Chalo, there is one trick. You can write first this sin cos tan cosec sec cot. Okay, sin cos tan cosec sec cot. तो पहले sin cos tan लिख लिया, sin का अपोजिट cosec लिखा, रेसिप्रोकल cos का रेसिप्रोकल sec और tan का cot. तो उसके बाद this पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. Okay, then this again पंडित बद्री प्रसाद बोल हरि हरि. Like that you can remember. Acha, tell what is the relationship between tan and sin and cos? After saying this, what is happening with tan? Sin by cos. Because tan theta is p by b, and we divide sin theta by cos theta. What happens? Sin theta by cos theta. The sin theta p by h, this will b by h. H cancel, this become p by b. Or p by is tan theta. Then what is the formula? Tan theta equal to sin theta by cos theta. This again, there is another formula. Then again, what is cot theta? Cos by sin. Then again, we divide cos by sin, then become cot theta. Because cot theta is b by p. After dividing cos theta to sin theta, b by p again. Cos theta by sin theta. This is tell what is cosec theta? Cosec theta in term of sin theta. This is h by p. This is p by h. 1 by sin theta we can write or not? Because similarly cos theta 1 by sec theta and cot theta 1 by tan theta. Okay. Here cosec theta is equal to 1 by sin theta. Then we can also write sin theta equal to 1 by cosec theta. We can write or not? Yes. Okay. Then again sin theta into cosec theta equal to 1. इसे नहीं लिखना है. What happened? सर दिख नहीं रहा है. अच्छा. Sorry for that. Sin theta into cosec theta. 1 by 1. Now? Now it's clear. Okay. This is 1 by cosec theta. Okay. Similarly, cos theta into this. Cos theta into sec theta equal to 1 and tan theta into cot theta equal to 1. Again, this and this.
So we will do some problems. Can I erase this? No, sir. No. Okay, right. I will send notes. I will send notes also. Okay, you can. एसेस ले लो इससे अच्छा है हाँ, क्या स्क्रीनशॉट एसेस ले लेगा हाँ स्क्रीनशॉट हाँ, टेक a screenshot also. After class I will send notes. ओके सर Okay, so can I proceed? यस सर Okay, very nice. In right angle triangle, ABC, right angle triangle, triangle. This is the sign of triangle. Okay, you have triangle ABC. Ya. Merke begitu. Gada itu. Parah itu ya. Okay, do this problem. I'm giving 2-3 minutes. Parah. Here it is mentioned also angle B equal to 90 degrees. Then we can find. Mana? Lana, patah na, protect. हम जना चौकना हाँ आप हम बैठ कर खड़े नहीं करो अच्छी थी तो दिन में Okay, we solve this problem. This question tells in right angle triangle B is 90 degree. B is 90 degree. This is 90 degree and AB 4 centimeter. AB 4 centimeter. BC 3 centimeter. Then find
Sine of ACB. Tell what is the value of AC? चलो use Pythagoras P theorem. ठीक है, Pythagoras theorem. ठीक है, AC square equal to AC equal to 5 sir. हाँ AB square BC square. तो AC square equal to 3 square AB 3 AB 4 4 square plus 3 square. तो AC square equal to 16 9 25. Okay, tell if x square equal to 25, then what is the value of x? Root under 25. No, means according to root under 25. According to you, this value is 5, right? Plus minus 5. No. Okay, I clear your doubt first, then I will solve this problem. Sir, AC equal to under root 25 and the answer is 5. First, हाँ, okay. X square equal to 25. Either leave it. I will clear your doubt. Then what is the value of x? What can we write? Root under 25. Root under 25. Then what is the value of this? Obviously 5. 5. X equal to 5, right? Yes sir. After, but we check minus 5 is also satisfying this equation. Minus 5 का square 25. That only I am telling plus minus 5. हाँ, you told ये plus minus, but here we cannot. According to you, 25 square root of 25 equal to plus minus 5, right? According to you. Hello. Plus minus. हाँ, according to, okay. Means you are telling 5 square equal to 4. Means you are telling x square equal to plus minus x, right? Yes. Oh, okay. Yes. What is the value of 3 square according to you? 3, right? Right. What is the value of minus 3 square? Minus 3 square. That is 9. According to you, minus 3. Tell. But The minus cannot be taken. So simply in this minus cannot be taken. This value is according to how it is wrong. आप बोल रहे हो 25 स्क्वायर रूट 25 प्लस माइनस 5. तो स्क्वायर 25 x square according to plus minus x means according to you telling that 5 square का square root plus minus 5. Okay, minus 5 का whole square equal to also plus minus 5. This is wrong, not plus minus x. किसी भी चीज को नहीं होगा. हाँ, याद कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. ये अभी 10th में नहीं बताया जाता है, 11th में ये सब बताया जाता है. क्या याद करेंगे आज से? Mod of x. हाँ, व्हाट इज मॉड ऑफ एक्स? इफ टेक नेगेटिव वैल्यू देन इट विल बी 5. इफ टेक पॉजिटिव वैल्यू इट विल बी आल्सो 5. Negative 5, yeah. नेगेटिव को भी 5, पॉजिटिव को 5. तो कभी बोलेंगे नहीं x और प्लस माइनस x. कब बोलेंगे? तो मॉड x का क्या वैल्यू होता है ये अभी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. ये x लेता है कब x ग्रेटर देन 0. ये माइनस x लेता है कब x लेस देन 0. ये 0 लेता है कब x इक्वल टू 0. ठीक है ना, ये मॉड x इक्वल. ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर का वैल्यू इसके अनुसार मॉड ऑफ 3. तो मॉड ऑफ 3 क्या, ये x देखेंगे x 3 है, x ग्रेटर देन 0 है, 3 ग्रेटर देन 0 है. नहीं. हाँ, तो 3 होगा, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसका वैल्यू x दे दिया बिकॉज 3 ग्रेटर देन 0. अब बोलो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर, इसका वैल्यू मॉड ऑफ माइनस 3. Mod of minus 3. हेलो, Mod of minus हाँ, 3. हाँ, तो देखो ये माइनस 3 x के प्लेस पे इस बार क्या है माइनस 3 है ना. हाँ. तो माइनस 3 लेस देन 0 है कि नहीं? बोलो माइनस 3 लेस देन 0.
Yes. हाँ, तो -3 0 से नीचे x लेस देन 0, इसके लिए क्या -x होगा, और -x x के प्लेस पे -3 है, तो देखो -x के प्लेस पे -3, ये 3 हो जाएगा। देखो ये -3 ये भी 9 है और 3 ये भी 9 है, तो दोनों का वैल्यू सेम आने थे, देखो सेम आया, तो दिस इज द राइट आंसर। मॉड ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर रूट वैल्यू ये कभी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, और ये अंदर जो वैल्यू पुट करते हैं ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। तो ये अभी 10 तक कोई बताया नहीं जाता, मैं इसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज से कभी नहीं बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू, हाँ बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या? इक्वेशंस बनाने के वक्त तो दोनों वैल्यू नहीं, देखो यहाँ बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लेकिन अलग है उससे। देखो x स्क्वायर इक्वल टू 25, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, समझे ना। अब अंदर से निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये मॉड ऑफ 5, अब मॉड ऑफ 5 का वैल्यू 5 होता है, तब हो गया प्लस माइनस। इसके बाद कभी नहीं करेंगे कि ये इसके बाद प्लस माइनस 5 लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ओके। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन रट लो, वो 11th में है, तो यहां वैल्यू लिखेंगे इफ x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू प्लस माइनस पहले लगाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 25, यहाँ के बाद यहाँ नहीं लगाएंगे प्लस माइनस, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो ये गलती कभी नहीं करना कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू x बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, हमेशा मॉड ऑफ x बोलेंगे आज से। और मॉड ऑफ x क्या होता है पता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को भी निगेटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, हाँ निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो है ही पॉजिटिव और 0 का वैल्यू 0, तो ये हमेशा याद रखेंगे कभी भी स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, मींस x इक्वल टू 0 पे तो 0 आएगा नहीं, और x का वैल्यू क्या होता है, x भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मींस x का वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अंदर में कभी भी निगेटिव नहीं पुट करेंगे, और इसका वैल्यू भी कभी निगेटिव आएगा नहीं, तो ये याद कर लो, ठीक है ना। हाँ, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25, इसके बाद ये आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, ना कि ऐसे आया है प्लस माइनस इसका इससे, ये कभी नहीं याद करेंगे, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर इसके कारण। चलो, तो AC इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 होगा, तो इसका वैल्यू 5। अब बताओ AC क्या है, लेंथ है ना। हाँ सर। लेंथ कभी निगेटिव होता है? नो। तो इसलिए AC 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो AC 5 इस कारण से हुआ, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, तो यहाँ लेंथ AC, तो AC नॉट इक्वल टू -5, क्यों, अभी रीजन बताया, बिकॉज AC इज लेंथ, AC इज लेंथ। तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर को वैल्यू क्या याद रखेंगे आज से, x स्क्वायर का x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या, मॉड ऑफ x, हाँ मॉड ऑफ x, कभी x नहीं बोलेंगे, और स्क्वायर रूट कभी निगेटिव होता ही नहीं है। ये आगे 11th में आओ, जेईई की तैयारी करोगे तो ये सब बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो यहाँ से AC 5 हो गया, चलो यहाँ से AC 5 निकाल लिया। अब बोलो क्या था, साइन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 10, साइन ऑफ ACB, साइन ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB, व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल ACB, with respect to this angle this became perpendicular, right? 4/5, AB by AC, right? AB by AC is equal to 4/5. 4/5, again cos angle ACB, क्या था, ACB is BC by AC, 3/5, 3/5, and again tan angle कुछ था ऐसे, tan angle I think BAC था क्या, BAC, maybe, हाँ BAC, तो BAC इसके इस A के according,
This is perpendicular. So Yes, sir. perpendicular by base. Perpendicular by base. So 4 by 3. 3 by 4 4 by by 3. 3 na? Oh, 3 by 4. Sorry. Yes. 3 by 4. Yeah. 3 by 4. And again, what is the Cosec- question? Cosec angle BAC. Cosec angle BAC. Cosec angle BAC, hypotenuse by perpendicular. सर BCA लिखे हैं आप BAC. BCA लिखे हैं BAC. चलो BAC, ये इसके एंगल, इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो AC बाय BC, तो ये 5 by 3. और क्या था? Cot angle BAC. कॉट एंगल BAC. तो B ये था, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये, और बेस ये, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, तो AB बाय BC. 4 by 3. देखो tan का तो देखो रेसिप्रोकल tan का कॉट होता है ना, हाँ तो ये BAC ये भी BAC, तो इसका देखो रेसिप्रोकल है, 3 by 4 का रेसिप्रोकल 4 by 3. ठीक है, तो टिल नाउ एनी डिफिकल्टी? no sir. Okay. Next. In given figure, shine ACB equal to 12 by 30. Then find sine BAC, cos angle BAC, tan of ACB, and cot of ACB, and cosec of ACB. ठीक है, फाइंड. Yeah. Is 12. Hypotenuse 13. Base is equal to root under 13 square. Hello everyone, you search on the net what is the value of a square root of x square after class. Okay. Then your doubts will be clear. In 10th class generally normal time. What is the value? Generally we think that square root of x square equal to plus minus x. This is wrong. Okay. Chalo, let us solve the problem. Okay. After you will tell this. Okay. Sine ACB, sine angle ACB. What can be right? After seeing this figure, tell. Sir, AB by BC. AB by tell again. नहीं. AB by. Yes. AB by Perpendicular will be 12. AC. AB by AC ना. Yes, sir, AB by AC. Hypotenuse ना. हाँ sir, hypotenuse AB by AC. AB by AC. AC. AB by अच्छा. Then here AB equal to 12 and AC equal to 13. We can write or not? But sir इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि AB equal to 12 सीधा. This we cannot write because ये गलत हो there जाएगा. is suppose 24, 26. Then someone will tell AB equal to 24
or AC equal to 26. We cannot write like that. Okay? Yes sir. हाँ, तो ऐसे नहीं लिख देंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, Let it be K हाँ, because ये AB real equal to measurement नहीं है. 12K लिख देते हैं, और हाँ, AC equal to 13K. देखो 13K. पुटिंग दिस वैल्यू 12K by 13K. हाँ, बेस हो जाएगा 5. हाँ, एयर K इक्वल टू 1 होगा तब AB इक्वल टू 12 हो जाएगा. पाइथागोरस से 5 वैल्यू के. हो जाएगा. हाँ सर. K का डिफरेंट BC 5. Also K not equal to 0. ओके, ये भी नहीं Yes लिखते. sir. K 0 रखेंगे तो AC 0, ये भी 0 हो जाएगा. लेकिन हमारा हाँ, तो sir. क्वेश्चन में ऐसा ही नहीं बताया. फिगर देख के नहीं लगता है कि AB और AC 0 होगा, तो K not equal to 0 ये भी लिखेंगे. तो चलो AB के AC के अगेन पाइथागोरस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर आंसर 5 है. BC स्क्वायर. तो आफ्टर यू विल 5K आई थिंक. ठीक है. हाँ, टेक K ग्रेटर देन 0, इट विल बी रेशियो. ठीक है ना. ये तो हमेशा से 0 से बड़ा ही होगा. हाँ, ग्रेटर देन 0 लेगा तब देखो क्या फायदा होगा. जैसे यहाँ तो 140K स्क्वायर हो जाएगा. हाँ. 169K स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर से क्या हो जाएगा 169 नहीं 225K. तो माइनस होगा ना. वो गलत है. इतना हाँ, K स्क्वायर minus माइनस 140K स्क्वायर, देन दिस तो बिकम्स -25. 25K स्क्वायर. अब देखो 25. मॉड ऑफ 5K हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से वैल्यू. हाँ. हाँ, और 5 तो देखो मॉड ऑफ 5 को देखो, 5 भी पॉजिटिव K भी पॉजिटिव लिखे हैं, तो 5K के रूप में निकल जाएगा कि नहीं. नेगेटिव. हाँ, इसलिए ले लिया. इसका टेंशन नहीं लेना क्यों लिया, ताकि मतलब कुल मिला के हमारे से. K का सर कोई दिक्कत नहीं करता है वो. हाँ, ऐसे दिक्कत चेंज नहीं नहीं है, करता है लेकिन आंसर. मैं इसलिए ले आना है कि ताकि K पॉजिटिव ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि यहाँ लेकिन मतलब आंसर लाना K है. हटा भी नहीं सकते हैं. हाँ, मॉड ऑफ 5 के इसलिए लिया ना क्योंकि जब निकालने लगोगे ना तो यहाँ K तो पॉजिटिव है, जैसे कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको तो मॉड से ऐसे ही निकाल देते हैं. मॉड ऑफ 2 ऐसे निकाल देते हैं. हाँ. मॉड ऑफ 3 तो यहाँ तो K पॉजिटिव है तो 5 के डायरेक्ट निकाल देंगे. ठीक है ना, हमें पता है K पॉजिटिव है. नहीं तो K निगेटिव रहता तो निगेटिव के साथ निकलता, और मेजरमेंट निगेटिव होता नहीं है. हाँ, देखो ये निगेटिव 5K है. देखो यहाँ देखो x मॉड ऑफ x क्या होता था, अगर x निगेटिव होता है x लेस देन 0 ऐसे होता है ना, तो यहाँ से -5K हो जाता है k लेस देन 0. तो फिर पुट करते तो 12K बाई -5K माइनस में आंसर चला था, तो इसलिए K पॉजिटिव दिया. ठीक है ना, इसका टेंशन नहीं लो. ठीक है ना, K. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AC 5K आ जाएगा. यस सर. ठीक है, तो यहाँ से साइन ऑफ क्या निकाला तो बोलो. BAC. साइन ऑफ BAC, एंगल BAC. एंगल BAC क्या क्या हो जाएगा. BC by AC. AC BC क्या 5 सेंटीमीटर. BC है, ये BC आएगा नहीं यहाँ से ऐसे BC 5K आएगा. BC 5K हाँ. और AC कितना आएगा AC आपका 13K. 13K. और K कट जाएगा तो 5/13. एंड और क्या था, बस यही था शायद. अच्छा और ऐसे नहीं आते. चलो अब समझ में आ गया ना ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. हाँ सर. ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. नहीं सर. ठीक है.
हाँ चलो चलो, एक हमारे जैसे हमने क्या माना था, सॉरी जैसे ए बी बाई ए सी था, तो ये कितना था, 12/13 था ना। हाँ तो ए बी इक्वल टू 12 के माना था, ए सी इक्वल टू 13 के, है ना। अब बताओ के ग्रेटर देन 0 इसलिए लिया, देखो ए बी क्या लेंथ है, बोलो लेंथ है ये सब। ओके, अगर लेस देन 0 अगर रखते तुम्हारे अनुसार तो लेंथ निगेटिव हो जाता कि नहीं, बोलो। जी। हाँ हाँ तो 0 हो इसलिए के जाता। ग्रेटर देन 0 पहले ले लिया, समझ गया ना। हाँ अच्छा ये यूनिवर्सल है तो। हाँ 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 ठीक है, हाँ यूनिवर्सल। लेकिन कोई पूछ सकता है कि यहाँ के है तो अपना जवाब दें। ठीक है चलो आगे क्या है, यहाँ तक तो हो गया, फार्मूला सारा लिखा दिया। हाँ तो नाउ आई एम राइटिंग सम ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू, आई विल एक्सप्लेन टुमारो। अभी लिख दे रहे हैं, कल एक्सप्लेन करेंगे, अभी याद कर लो, कल उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे आया इसका इतना वैल्यू, ठीक है ना। Yes. हाँ अभी केवल लिख रहे हैं, कल एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इट विल टेक टाइम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टुडे। तो टेबल बना लो, टेबल है ट्रिगोनोमेट्री टेबल, यहाँ लिखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल, टेबल तो ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू पढ़ेंगे थीटा के कुछ कुछ वैल्यू के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 14, 60 एंड 60 एंड 90। तो साइन थीटा, साइन अगर थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री रखेंगे तो 0 आएगा वैल्यू, तो ठीक है ना। 0 हाँ ये 0 डिग्री, ठीक है, और ये साइन थीटा का वैल्यू 0 आएगा। साइन 30 डिग्री 1/2, ये 1/√2, 1/√2 ये and √3/2, 3/2 ठीक है। and this L1 टुमारो वी विल डिस्कस, ठीक है 91। हाँ 91 अभी याद करने के लिए सीखेंगे और कल इसको अच्छे से देखेंगे। cos थीटा इधर 0, ये 1 हो जाएगा, इसके अब आते जाएगा, ये इधर से गया 0 से 1, ये इधर से चलेगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा, √3/2 and 1/√2 1/2 and 0। चलो इसमें भी एक, ठीक है। अब बोलो tan क्या होता है, tan थीटा, 2/√3। tan थीटा, सर इसका 45 हमको पता है बस। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा ना होता है ना। हाँ हेलो तो इन्फिनिटी होगा सर, इन्फिनिटी नहीं, sin बाई cos, 0/1 क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा, 0 अनडिफाइंड है। 0 यार, 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, बशर्ते वो 0 नहीं हो। तो 0/1 0, सिंपल। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आएगा, ये डिवाइड करो 1 आएगा, ये आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब बोलो 1/0, 0 नहीं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नीचे 0 है इसीलिए इस बार इन्फिनिटी होगा। हाँ
tell who is telling infinitive here is answer. Sir, Kumar Shanu. Kumar Sanu. And anyone? There is an infinitive. सर का सिंपल है कि 0 से कोई डिवाइड नहीं किया जा सकता है सर. हाँ तो 0 से डिवाइड नॉर्मली इंफिनिटी होगा. चलो अभी एक और चीज सिखा रहे हैं. 1/0 नेवर वी कैन राइट इंफिनिटी. इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर. आज से बोलेंगे ये भूल जाओ इंफिनिटी. 1/0 आज से बोलेंगे नॉट डिफाइंड. 1/0 क्या बोलेंगे आज से? नॉट डिफाइंड. कभी नहीं बोलेंगे इंफिनिटी. ये गलत है बिल्कुल. इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता. उसी तरह से 1/infinity 0 नहीं लिखेंगे. ये भी नहीं लिखेंगे. सारा ये सब अभी बताते रहे. तो सिंपल याद रखो 1/0 को क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड. क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड. ठीक है ये याद कर लो. कभी नहीं बोलेंगे 1/0 इंफिनिटी. चलो ठीक है. तो यहाँ क्या लिखेंगे? अनडिफाइंड. क्या लिखेंगे? अनडिफाइंड. नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड. सिंपल. Never from today we will never tell 1/0 is infinity. चलो what is the value of cosec theta? tell sec sin theta का रेसिप्रोकल लो. अरे sin थीटा 0 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो गया ना. 0/1 1/0 तो फिर से अनडिफाइंड होगा. अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड. आप सर्च कर लेना नेट पर कि 1/0 क्या होता है. इंफिनिटी कभी नहीं बोलेगा. नॉट डिफाइंड बोलेगा. ठीक है ना. टू थिंग्स यू कैन चेक. वन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0. एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है नॉट डिफाइंड. चलो दिस वैल्यू 2 हो जाएगा. दिस वैल्यू बोलो. इसका रेसिप्रोकल करो ना. √2 बस. क्या हुआ क्या तुम लोग को. चलो ये 1 इसका रेसिप्रोकल 1/1 1. चलो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल 1 इसका 2/√3. जैसे ये इधर से अपोजिट आ रहा है ये भी इधर से ऐसे चला जाएगा. ये √2 ये 2 ये अगेन नॉट डिफाइंड क्योंकि 0 पर नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड. चलो एक वर्ड लिखेंगे नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड. ठीक है. cot थीटा ये फिर से नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड. ये √3 ये 1 ये 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड. यानी नॉट डिफाइंड 1/0 था तो इसका रेसिप्रोकल 0/1 हो जाएगा. रेसिप्रोकल तो 0 हो जाएगा ये. ठीक है. हेलो एवरीवन. अरे बोलो यार क्या हुआ. बोलेगा तभी तो पढ़ाएंगे. जी. अच्छा बोलो इसका वैल्यू क्या होगा. 1/1/2 इसका वैल्यू कितना होगा? 2/1. हाँ 2 होगा बेसिकली यही ना. अच्छा 1/2/3 इसका वैल्यू कितना होगा? 3/2. 3/2. मेरी 3/2. चलो 1/1/4 कितना होगा? 4/1 मतलब 4 ना. चलो यस. ये कितना होगा? यस सर 0/1. गलत. 1/0 क्या बताए थे? अनडिफाइंड बताए थे ना. नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं सर. हाँ तो नॉट डिफाइंड हो गया तो कैसे 1/नॉट डिफाइंड 0 हो जाएगा? 0/1 होगा तो सर नॉट डिफाइंड हो जाएगा. अरे यार 0/1 नॉट डिफाइंड है. 0/1 0 वैल्यू होता है. क्या पढ़ लियो यार. तो ये अनडिफाइंड होगा अभी. चलो ये सब ठीक है थोड़ा हार्ड कर देगा. ठीक है तो वहां से याद कर लिए 1/0 नॉट डिफाइंड है. ठीक है ना. यहाँ ये ऐसे किस लिए अपोजिट हो रहा था मतलब ये जा रहा था ऊपर क्योंकि ये पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू था. 0 होगा तो जब आप बोल दोगे ये 1/1/0 0 बोल दोगे ये तो नॉट डिफाइंड है और इसका वैल्यू 0 है. नॉट डिफाइंड कभी 0 के इक्वल होगा नहीं होगा. तो इसलिए ये नहीं होगा. यहाँ पर नॉट ही डिफाइंड होगा आंसर. ठीक है. चलो थोड़ा ये सब जेईई में थोड़ा ये सब जेईई का तैयारी करो ना.
तब ये सब छोटी छोटी गलती करना, तब वहां सब गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स 1/0 इंफिनिटी, ये सब भूल जाओ अब। चलो यहां तक हुआ। हेलो एवरीवन। Yes sir. हाँ यहां तक हो गया। Yes sir. ठीक है, याद करने के लिए साइन का याद कर लो। साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फिर कॉस में क्या करना, ये इधर से चला ये इधर से आ जाएगा 1 √3/2, देखो अपोजिट आ रहा है। tan क्या करना है, साइन बाई कॉस पता है, डिवाइड देते चले जाओ, डिवाइड देते चले गए। फिर कोसेक, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 है तो 0/1 होगा, तो 1/0 1/0 अभी बताएं नॉट डिफाइंड। इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 होगा, और ये 1/1 है तो ये 1 ही हो जाएगा। चलो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 का 1 √3/2 का 2/√3 1/√2 का √2 1/2 का 2 0 है तो 0/1 है तो 1/0 फिक्स हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉट tan का होता है तो 0/1 था यहाँ पर, या 0/2 नॉट डिफाइंड, 1/√3 √3 1 या √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड था। नॉट डिफाइंड मींस ऐसा लिखा हुआ होगा जिसका रेसिप्रोकल लेना है, तो 1 नहीं ऐसा लिखा हुआ होगा नॉट डिफाइंड 1/0 टाइप, तो ये हो जाएगा 0/1 मींस 0। अब ये नहीं समझना 1/0 अनडिफाइंड है तो 2/0 अनडिफाइंड नहीं होगा, ये भी अनडिफाइंड है मींस, हाँ मींस डिनोमिनेटर में 0 नहीं पुट करना है, वो अनडिफाइंड बोला जाएगा। तो आज से ये सीख लें, ठीक है। तो नाउ वी आर एंडिंग द क्लास, ओके। Yes sir. थैंक्स Yes. फॉर ज्वाइनिंग, वी विल कंटिन्यू टुमारो, Yes. ओके।